Welcome friends. In this video, we will try to cover the topic communication and the process of communication, and lastly, in brief, we will also see various type of internet networks. Let us begin with communication. What is communication? You might be having an idea or heard this word communication many times. So communication means exchange of information, views, ideas, opinions, etc. between two or more parties, right, is called communication. So in communication, one party tries to give some information, views, opinions, ideas, etc. and the other party try to receive the same information, views, ideas, opinions, etc. Right. In communication, there is a transfer of information, views, ideas, opinions, etc. Right. One party is called sender, the other party is called receiver of information. So it is a two-way process. Communication is not a one-way process. For example, at the moment, what I am trying to do is communication only. I am trying to explain you, I am trying to give you an idea, opinion, concept, information about what communication is. You are trying to receive the same. So this is what is going on at the moment is communication. Okay, so that is about communication briefly. And let me tell you that communication is one of the most important infrastructural services. Communication solves the problem of contact between the two parties. It brings two parties into contact. And hence, communication is very crucial and important for economic development, social development, development of commerce, business and industry. And that's why it is considered one of the most important infrastructural services. The more the development of communication and facilities of communication, the more the development of economic development of the country, industrial, commercial and service sector development of the country. Okay, so that is about communication meaning and concept. Now secondly, process of communication. Now what is process? So process of communication means through what stages or what steps the process of sending information to receiving information passes. जब एक इंफॉर्मेशन भेजने वाला इंफॉर्मेशन भेजने की ट्राई करता है तो इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचने में वो कौन से स्टेजेस से गुजरती है उसको हम स्टेजेस या स्टेप्स ऑफ और प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बोलते हैं. बराबर. तो नंबर 1 पहला स्टेज है formation of message, right? We also call it encoding of message in other terminology, in other words. So whenever you want to communicate with anybody or anyone wants to communicate with anybody, some message has to be produced or developed. इसको कहते हैं formation of message. जैसे मैं आपको अभी जो एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं उसमें पहले मुझे मैसेज डेवलप करने पड़ते हैं. मैसेज डेवलप कंसेप्चुअली भी हो सकते हैं, माइंड में भी हो सकते हैं. उसको हम टेक्सचुअल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बट सम मैसेज हैज टू डेवलप, हैज टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है. तो देयर कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स. नंबर 2, सेकंड स्टेप. एक बार मैसेज प्रोड्यूस हो गया, फॉर्म हो गया, तो अब हम मीडिया सिलेक्ट करेंगे, मीडियम सिलेक्ट करेंगे. Right? There are multimedia, various media, अलग अलग रास्ते हैं. क्या किसके? एक मैसेज सेंडर से लेके रिसीवर तक पहुंचाने के अनेक रास्ते, अनेक वेज हैं. उसको हम मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल है, एसएमएस है, राइट, व्हाट्सएप है, पर्सनल कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मल्टीपल वेज. टेक्स्ट के फॉर्म में है, सिंबल, इमेज, मीडिया, मल्टीमीडिया है.
उसमें से कोई एक अप्रोप्रिएट मीडिया हम चूज करेंगे या सेंडर चूज करेगा। नंबर 3, टू सेंड द मैसेज। अब मैसेज भी प्रोड्यूस हो गया, मीडियम भी सिलेक्ट हो गया। अब हम तीसरा काम करेंगे, वो सिलेक्टेड मीडिया थ्रू प्रोड्यूस्ड मैसेज को हम पहुंचाएंगे, पहुंचाने के लिए भेजेंगे। इसको बोलते हैं तीसरा स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट। फोर्थ स्टेप है टू एक्सेप्ट द मैसेज। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा, तो पहले 3 स्टेप पूरे हो गए। पहले तो मैंने मैसेज टाइप किया, इमेज बनाई, टेक्स्ट बनाई, सिंबल बनाया, पिक्चर बनाया, कोई भी जो रास्ते से जो भी मैं आपको भेजना चाहता हूं, जो भी मैसेज अनेक फॉर्म में होते हैं। तो मैंने पहले मैसेज डेवलप किया, प्रोड्यूस किया, फॉर्म किया, मीडिया सिलेक्ट किया कि मैं व्हाट्सएप से भेजूंगा, और फिर वो मैसेज मैं सेंड करूंगा। 3 स्टेप पूरे हुए। अब चौथे स्टेज पर आप वो व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करोगे, राइट। 5वां स्टेज है कम्युनिकेशन की प्रोसेस का, और वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। इंटरप्रिटेशन के लिए हम बोलते हैं डिकोडिंग द मैसेज भी बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन और डिकोडिंग द मैसेज मीन्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज, टू इंटरप्रीट द मैसेज। भेजने वाले ने मैसेज भेज दिया, पहुंचने वाले को पहुंच भी गया, रिसीवर को पहुंच भी गया। अब वो रिसीवर समझने की कोशिश करेगा कि क्या मैसेज आया है, क्या पिक्चर आया है, क्या टेक्स्ट आई है, क्या इमेज आई है, क्या सिंबल आया है, एंड व्हाट डज इट कन्वे। तो उसको बोलते हैं 5वां स्टेप। एंड छठा और आखिरी स्टेप है रिप्लाई ऑफ द मैसेज इफ रिक्वायर्ड। अगर जो भेजा गया मैसेज है उसमें हमने सामने वाले को फीडबैक या रिप्लाई भी मांगा है या एक्सपेक्टेड है, तो फिर जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है वो फिर सेंडर ऑफ द रिप्लाई बनेगा। वो अप्रोप्रिएट रिप्लाई, उनको जो ठीक लगेगा वो रिप्लाई रिस्पॉन्ड में हमें करेगा। और यहाँ एक साइकिल, एक चक्कर कम्युनिकेशन की प्रोसेस का पूरा हुआ, राइट। मैंने आज का आखिरी टॉपिक ये वीडियो का है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो हमको पता है कि आज मॉडर्न ईरा इज द ईरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन which is done with the help of electronic instruments, right, and it includes internet communication. Internet communication has revolutionized the whole world, the whole communication process. Internet has brought the world together. Internet has made the entire world a small village, right? Internet has made the communication speedy, easy and cheap. Never before, right? So, अब ये जो इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है उसमें अलग अलग किस्म के नेटवर्क बनाए जाते हैं। उसके यहाँ मैंने 3-4 टाइप लिखे हैं। नंबर 1 LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, CAN, campus area network, MAN, metropolitan area network, and WAN, wide area network. Let us begin with LAN. LAN, LAN means local area network. When computers or electronic devices located in a very limited area are connected with one another is called local area network. जब एक लिमिटेड जगह पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, पाम टॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, उसको जब हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो लैन बनता है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो एक छोटा बिजनेस है और वो छोटे बिजनेस में ओनर एक लैपटॉप या पाम टॉप या कंप्यूटर लेके बैठता है, बाजू में उनका अकाउंटेंट बैठता है और उसके बाजू में उसका क्लर्क बैठता है। तीनों के पास डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक। ये तीनों डिवाइस को मान लो आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये लैन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। ये बहुत लिमिटेड एरिया में होता है। नंबर नेक्स्ट, लैन से वाइडर एक नेटवर्क बनता है जिसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। अलग अलग किस्म की जो लैन है उसको हम जोड़ दें तो फिर कैन बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बड़ी स्कूल है और वो स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में 2 पीसी हैं, क्लर्क के ऑफिस में 2 पीसी हैं, या कंप्यूटर हैं या लैपटॉप हैं या डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक। फिर उसी स्कूल में लेबोरेटरी में कुछ पीसी हैं, कंप्यूटर हैं। उसी स्कूल में लाइब्रेरी में कुछ पीसी हैं। उसी स्कूल में कंप्यूटर लैब में कुछ पीसी हैं। उसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिए, तो अब ये कैन बनेगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। इट इज वाइडर देन लैन, इट इज ब्रॉडर देन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क।
थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच इज स्प्रेड इन a wider geographical territory than LAN and CAN. LAN और CAN से भी बड़ा एक नेटवर्क बनता है कंप्यूटरों का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जिसको हम मैन नाम देते हैं. इसमें हम पूरे, जैसे एक कंपनी है, एक बिजनेसमैन है जिसका थोड़ा बड़ी साइज का बिजनेस चलता है और उसकी 4 अलग अलग शॉप अलग अलग एरियाओं में, 4 ब्रांचें, चेन स्टोर्स काम कर रहे हैं. वो अलग अलग एरियाओं में, बड़ी सिटी के अलग अलग एरियाओं में जो बिजनेस वाले की ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके कंप्यूटरों को हम आपस में जोड़ दें तो एक जो है कैंपस एरिया नेटवर्क या लैन मान लो घोड़दौड़ रोड पर है, दूसरा मान लो वराछा रोड पर है, तीसरा उधना में है, चौथा रांडेरा डजन एरिया में है. ये तमाम को हम कनेक्ट कर दें तो एक बड़ी सिटी में के एरिया में फैला हुआ एक ज्योग्राफिकल नेटवर्क बनता है. उसको हम मैन नाम देते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया, सिटी लेवल. When wide area network, जैसे इसका नाम ही बताता है कि is a network in which computers or devices, electronic devices are connected world over. पूरी दुनिया या बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैले हुए नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं. वाइड एरिया नेटवर्क अगेन 2 टाइप का होता है. एक को बोलते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क, एक दूसरे को बोलते हैं ग्लोबल नेटवर्क. ये एंटरप्राइज नेटवर्क क्या होता है? तो कि एंटरप्राइज नेटवर्क मींस व्हेन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज इज वर्किंग ऑन ए वेरी लार्ज स्केल एंड इट कनेक्ट्स इट्स डिवाइसेस और पीसीज लोकेटेड ऑल ओवर द प्लेसेस इज कॉल्ड एंटरप्राइज नेटवर्क. इसका बेस्ट एग्जांपल या बढ़िया एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, वी ऑल नो, is one of the India's largest organization, or India is having one of the largest railway network in the world. तो इंडियन रेलवे के हजारों रेलवे स्टेशन है. हाउ मेनी? थाउजेंड्स. तो इंडियन रेलवे के हजारों रेलवे स्टेशनों पर जो रेलवे के कंप्यूटर्स हैं ऑफिसों में, उन तमाम को हम जोड़ दें, उससे जो नेटवर्क बनेगा उसको हम एंटरप्राइज नेटवर्क कहेंगे. इसीलिए आज आपको कोई भी रेलवे स्टेशन की टिकट कोई भी रेलवे स्टेशन के पीसी से जनरेट होकर हम बुकिंग करा सकते हैं. ये एंटरप्राइज नेटवर्क ने मुमकिन बनाया. ठीक है. और लास्ट है ग्लोबल नेटवर्क. ग्लोबल नेटवर्क को हम बोलते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब. पूरी दुनिया के जो अलग अलग कंट्रियों में, अलग अलग टेरिटरियों में, अलग अलग प्लेसेस पर जो करोड़ों कंप्यूटर हैं, डिवाइसेस हैं, उनको हम आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्क बने, इसको ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का. इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. एंड ऑल दिस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन. एज आई सेड, it has made communication very cheap, very easy and very speedy. ठीक है. तो friends, here we are concluding the video. I hope